ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز بالدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुआ, टू मेक दुआ, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी इबादत है. The greatest ibadat. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Ad-du'a huwa al-ibadat." Ad-du'a huwa al-ibadat. Another hadith, ad-du'a mukhul ibadat. Mukh meaning जो दिमाग है ना, दिमाग, इंसान का दिमाग नहीं है तो जी नहीं सकता है. फरमाया इबादत का जो दिमाग है वो दुआ है. ये लेकिन इतनी जबरदस्त इबादत, इतनी आसान है. इट्स सो सिंपल दुआ दैट यू डोंट हैव टू स्पेंड वेल्थ टू आस्क अल्लाह ताला. माल भी खर्च करने की जरूरत नहीं, ताकत भी खर्च करने की जरूरत. डोंट हैव टू स्पेंड योर स्ट्रेंथ. और उसमें कुछ टाइम भी नहीं लगता है. Admi while driving, he can talk to Allah. And go to bed, he can talk to Allah. It's not even necessary. It is sunnah to raise, but not necessary to raise your hand. You can ask from your heart to Allah Ta'ala. And it is not necessary to ask Allah Ta'ala with wuzu. Not necessary. Yes, it's adab. Not even necessary to face the Kaaba, Qibla, wherever you are. Raise your hands. Ask Allah Tabaraka wa Ta'ala. गरीब के लिए भी, मालदार के लिए भी, रात में भी, दिन में भी, मर्द के लिए भी, औरतों के लिए भी, जब कभी जिस मिनट में he can ask Allah Tabaraka wa Ta'ala. अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ. रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम. मुझसे मांगो मैं कबूल कर लूंगा. दुआ न मांगना तकब्बुर है. Not to ask Allah Tabarak wa Ta'ala is a sign of pride. I'm not saying Allah says, Innal ladhina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai sayadkhuluna fi jahannam dakhiri. जो दुआ मांगने से तकब्बुर करता है, I don't need, I've got everything, I don't have to ask. Who don't need anything from Allah? Allah has given us everything and we have to turn to Allah Tabarak wa Ta'ala. He can give, He can take also. He knows. फरमाया जिसके दिल में तकब्बुर है, those who had the pride, and he's not raising his hand, he's not asking from his heart. Allahu Akbar, sayadkhuluna an kareeb, soon I will send him in Jannah. Allah Jannah से हमारी हिफाजत करे. आमीन. और दुआ तो
जहां कहीं हो आदमी को आमीन बोलना चाहिए। Wherever anybody's dua can accept, anybody's dua can accept. I remember Ma'ruf Karhi, ये मुझे याद आया, on the way I was talking to Abdul Habib Bhai when he came to fetch me. SubhanAllah, he says, you know that the greatest alim from the student of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, Abu Abdullah, but his title was Shamsul Aimma Halwai. I asked my sheikh, my ustad, why he was calling Halwai. You know that. And look at his title was Shamsul Aimma, Maulviyon ka Suraj, son of the ulamas, son of the ulamas, not normal alim. He was son of ulamas. जैसे सूरज की रोशनी है, इसके नॉलेज की रोशनी इतनी ज्यादा थी। पूछा मैंने अपने उस्ताद से जिनसे मैंने बुखारी पढ़ी है, Hazrat said to me, you know, his father had sweet center, sweet shop, sweet shop. पैसा देने वाले तो, पाउंड देने वाले तो अल्लाह है, लेकिन इसके बाप की एक आदत थी, he used to call ulama just to give some हदिया, sweet. आओ मेरी दुकान पर थोड़ा हलवा खा लो, आओ मेरी दुकान पर हलवा खा लो. When they finish eat everything, वैसे भी ये जहाँ होता है हलवा वहाँ मौलवी का जलवा. अगर मौलवी साहब को शुगर हो जाए तो इससे बड़ी मुसीबत कुछ नहीं उसके लिए, क्योंकि ये स्वीट खाने से अभी मालूम हो गया. तो अजीब हालत. तो कहा वो उस हलवा खाने के बाद the father was saying to the ulama, whoever comes, please make dua for my son. उस वक्त बेटा छोटा था. Make dua for my son. He also become alim. He also become alim. So ulama used to make dua for him, for his son. Allah made his son Shamsul Aimma, ulama ka suraj. Allah had given him so much knowledge. That is a dua of the ulama. Ma'ruf Karhi rahmatullah alayhi, might you have heard his name, was a great wali of Allah, great scholar of Allah. You know, he was a great, you can say, Dada Peer of Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, because his Peer's name was Sirri Saqati rahmatullah alayhi, and his Peer is Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi. So Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi was Junaid Baghdadi ke Dada Peer hai Ma'ruf Karhi. Can you see that Junaid Baghdadi, he was a great wali of Allah also. Maybe you heard the name. You know, he was in the beginning, he was boxer, used to box. Junaid Baghdadi was no alim, no hafiz, nothing. Used to box, going, लड़ने के लिए. Every time he used to win, जीत जाते थे, बड़े ताकत वाले थे. जैसे आज भी है, बहुत सारी मैच में जीत गए. He used to fight and used to. Subhanallah. One day, an old man came. जैसे बात से बात निकल गई. When the old man came and told him, listen, I got 5 children. I got no food in the house. Told Junaid Baghdadi, I got no food. And listen, I am from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I am a Sayyid person. Another word. मैं सैयद फैमिली में से हूँ. घर में खाना नहीं है. मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ. तुम हार जाना, मैं जीत जाऊंगा तो मुझे भी कुछ पैसे मिलेंगे, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा. Look at it. Was an old man, not so old too. So, okay, no worry, I will help you. मैं हार जाऊंगा, तू जीत जाएगा, तू मुझे मारना ऐसे खाली मैं गिर जाऊंगा, लेकिन तुझे पैसे दिलवाऊंगा. अब this was the greatest match, old man and young man, Junaid Baghdadi and old man. It was Sayyid, subhanallah. Date arrange हो गया, so and so date ऐसा होगा. बिल्कुल सही story. You can read in the history of Junaid Baghdadi rahmatullah, how he became the Junaid Baghdadi, how he became the wali of Allah, friend of Allah. Subhanallah. सारे लोग जमा हो गए. एक बुढ़ा आदमी है, एक जवान आदमी है, तो जरा देखेंगे क्या बुढ़ा क्या करता है. लेकिन ये बुढ़ा आदमी कोशिश करता है इसको गिराने की. एक मर्तबा जुनैद बगदादी गिर गए और उसके ऊपर बैठ गए बुढ़ा आदमी और मारने लगा ऐसा.
लोग सोच में पड़ गए, ये पहली मैच है कि जुनैद बगदादी लॉस हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर कहा नहीं ये सब समथिंग रॉन्ग ही है, दूसरी बार होना चाहिए, द सेकंड टाइम। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ, लोगों ने इतना पैसा डाला, इतना डाला, लेकिन इधर से जुनैद बगदादी पर जूटे गिरे। तू कैसा आदमी है, इतने यंग पीपल वो लॉस हो गए, तेरे सामने बुढ़ा गिर गया, लेकिन दिल में वो मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He had so much love for Rasulullah and he was a family of Rasulullah Sayyid. There is no time to talk about the Sayyid people. So इतने पैसे लोगों ने उस बुढ़े को तो चला गया। जब जुनैद बगदादी घर गए तो बीवी ने भी डांटा। घर पर तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिंग एंड सॉन्ग होता है ना, ये म्यूजिक तो अलग होता है, बीवी का म्यूजिक कुछ अलग ही होता है, वो तो बहुत डेंजरस है। तो वो घर में गए तो बीवी का सॉन्ग, तू आज ऐसा ऐसा ऐसा, तू बदनाम हो गया फुला फुला, लेकिन ये दिल में कह रहा है यार मैं बदनाम हुआ कुछ नहीं, लेकिन मेरा नबी तो राजी हो जाएगा, सुभान अल्लाह, उनको तो खाना कुछ मिल जाएगा। रात में जब जुनैद बगदादी सोए, फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, फरमाया जुनैद तेरा नाम आज से औलिया किराम की लिस्ट में रखा जाएगा, सुभान अल्लाह, औलिया किराम की लिस्ट में आप became the wali of Allah just to respect and getting dua of a sayyid person. I was talking to you, Ma'ruf Karki rahmatullah alayh, Ma'ruf Karki rahmatullah alayh, that he was a Dada Pir of Junaid Baghdadi rahmatullah alayh. Subhanallah. Always he used to make zikr of Allah Ta'ala. Always his tongue. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Always. One day he went to barber shop to cut his hair. Then he said to barber, cut my mustache also. Okay. While he was cutting, the barber was cutting mustache, he said to him, stop making zikr, otherwise you get cut. You get cut. तो क्या कहा, कट जाएगी तो सिल जाएगी, चली जाएगी तो नहीं आएगी। जगह, if you get, I get cut, never mind. I can do stitches there, but the minute he will go away, he is not going to come back in my life again. I have to do zikr of Allah. You do your work, I'll do my work. Ma'ruf Karki rahmatullah alayhi. Subhanallah. He was going in the market with his murid. One man, he was standing, I was talking to you about dua. He was standing and he was giving water to everybody. It was a very hot day. जिसको उर्दू में कहते हैं सक्का आदमी, पानी पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला. He used to announcing while standing, जो मेरे हाथ से एक गिलास पानी पिए अल्लाह उस पर रहम करे. Giving dua also. Those who drink a glass of water from my hand, Allah have mercy on them. Ma'ruf Karki rahmatullah says, subhanallah, he went there, said, give me a glass of water. He drank a glass of water and sat down a glass of water. Subhanallah. And then the murid said, Hazrat, you forgot that you fasting. You fasting. He was Nafal fast. He said, yes. I remember that I am fasting. He said, why did you drink water? Farmaya, ye Nafal roza hai. I will make qaza tomorrow. But इस आदमी की दुआ शायद मुझे मिल जाए और अल्लाह मुझ पर रहम कर दे. Just for his dua, I drink this water. किसी की दुआएं लग जाए या खुद दुआएं करें. What Prophet Sallallahu says, आजज अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा होपलेस वो आदमी है मन आजिज बिद दुआ, जिसके पास दुआ करने का टाइम नहीं है. He is a hopeless person, Prophet Sallallahu said. In this dunya, he have no time to ask. I said to you, you don't have to raise your hand. While you driving, you can talk to Allah Ta'ala. You can ask Allah Ta'ala. While you go to sleep, you can talk to Allah. While you're sitting, you can talk to Allah. You can ask any time, daytime, night time. Allahu Akbar. And आगे फरमाया, अब खलुन्नास मन बदा बिस्सलाम, लोगों में सबसे ज्यादा माइजर, मैं कहता हूं मक्खी चूस.
You know, our Ustad used to tell us, do you know the story of Makhi Chus in a Sabak Mishkat Dars? I remember 35 years ago he told us, subhanallah, he says, you know, आजकल दुनिया में मक्खी चूस बहुत है. मैंने कहा मक्खी चूस क्या है? मक्खी चूस, फरमाया मक्खी चूस की स्टोरी सुनाई उन्होंने कि एक आदमी बहुत बखील था, उसके पास एक कप मिल्क था, उसमें मक्खी गिर गई. हदीस में है मक्खी के 2 पर होते हैं, 2 विंग्स. हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शमाइल तिर्मिज़ी में है, एक में बीमारी है, दूसरे में शिफा है. एक में बीमारी है, दूसरे में शिफा है. अगर मक्खी गिर जाए और तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई मिल्क नहीं है तो मक्खी को जरा डुबो दो ताकि वो बीमारी ना लगे, उसके दूसरे पर से शिफा रहे. हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उम्मत के कितने खैरखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस उम्मत के कितने वो रहीम कि अल्लाह ने उनको लक़ब दिया रऊफुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम. फरमाया ए मेरे उम्मतियों, व्हेन यू वॉक यू मस्ट वॉक विद 2 शूज. एक पैर में एक शूज और दूसरा न हो तो न चलना, तुम गिर जाओगे, लग जाएगा. उम्मत पर कितने रहीम शफीक है. तो अजीब हालत, मक्खी गिर गई, देखा उसने, निकाला कि इसमें भी थोड़ा मिल्क बाकी है, इसमें थोड़ा मक्खी में मिल्क बाकी है. उस्ताद told us, ऐसे भी लोग दुनिया में है. ऐसे निकाला, अरे तो उसने क्या किया, जरा दबा लिया, नीचे गिर जाए, बाकी एक ड्रॉप. फिर देखा अभी थोड़ा बाकी है तो उसने चूस लिया. इतना भी बखील आदमी होता है कि उसकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए. वो कभी लाम जेर ले नहीं, वो दाल जेर दे नहीं, वो लाम जेर ले हर वक्त, देने का नाम ही नहीं ले. अल्लाह अकबर. फरमाया सबसे बड़ा बखील वो है कि एक मुसलमान जाए उसको सलाम भी नहीं करता. अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अब खल किसको कहते? सबसे बड़ा बखील. एक तो छोटा बखील होता, एक सबसे बड़ा बखील लोगों में मम्बखिला बिस सलामी, जो सलाम करने से बखीली करता है. उसमें कोई टाइम भी नहीं, कुछ वक्त नहीं, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, बरकत तो ऐसी है, उससे ज्यादा क्या. तुम्हें पता है अल्लाह के नामों में से एक नाम अस्सलाम है. 99 नेम है ना, उसमें से एक नाम अस्सलाम है. इसीलिए हमारे उस्ताद शेख हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फ्रॉम कराची यूज्ड टू से, वन अरब केम एंड ही टोल्ड हिम, कैन आई टेल यू इसमें आजम? said yes. फरमाया Allah's name as-salamu. You read always ya salamu, ya salamu, ya salamu. Whatever problem you got, Allah will solve you. Allah will remove your problem. Subhanallah. बीमारी हो, शुगर हो, फला हजरत said one day या सलामु. और I mentioned so many people, I asked so many शयूख. फरमाया अल्लाह के नामों में एक नाम या सलामु है, इसको कसरत से पढ़ने से अल्लाह जिंदगी में सलामती अता फरमाते हैं, प्रॉब्लम को रिमूव कर लेते हैं. सलाम अलैकुम. इसीलिए when अल्लाह तबारक व तआला क्रिएट हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम उठे तो उनको सबसे पहले स्नीज आई. अदब अल मुफरद में इमाम बुखारी ने नकल किया है और मिशकात शरीफ में रिवायत भी है. फरमाया कि उनको पहले स्नीज आई तो अल्लाह ने कहा, जब तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही सेड फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह. सो अल्लाह सेड यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे. देन अल्लाह सेड टू हिम, आदम गो एंड मेक सलाम टू द एंजल्स. इस्लाम में सबसे पहले सलाम सिखाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को. द फर्स्ट पर्सन हु मेड सलाम टू द एंजल वाज आदम अलैहिस्सलाम. बात मेरी समझ में आ रही है? He stood up and he went to the angel and he made salam. फरमाया अल्लाह ने आदम, फरिश्ते जो जवाब दे वो कयामत तक के लिए तुम्हारी उम्मत और उम्मत के लिए यही सलाम और जवाब होगा. He went there, he made salam, अस्सलामु अलैकुम. फरिश्ते ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. पूछा क्या हुआ? कहा फरिश्तों ने कहा बस यही तुम्हारी उम्मत में सलाम और जवाब होगा. चल. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा कदिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, when Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came to Medina, जीतू अब्दुल्लाह इब्न सलाम फरमाते, I came to visit him. He came to falamma tabayyantu wajhahu, and Prophet ﷺ's face was shining like 14 moon.
अरफ्तु, he said I recognize अन्ना वजहहु लैसा बिकज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है. This is a cannot be a live person. He's a true Nabi. Then I went. What Abdullah ibn Salam says, I was sitting there when Nabi sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara. فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ, सबसे पहली चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान फरमाई मदीना मुनव्वरा में, वो क्या थी? या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करना. तो मेरी बात समझते हैं कि सब सो रहे हैं आप लोग? सो तो नहीं रहे ना? जरा से बोलो यार, पीछे वाले सो रहे हैं शायद, काम से थक गए तो नहीं? वल्लाह कह रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? तुतइमु ताम तुकरिउस सलाम मिम्मा अरफ्त व मिम्मा ला तारफ. फरमाया सलाम करो, खाना खिलाओ उसको जिसको तुम पहचानते हो, और उसको भी सलाम करो जिसको तुम नहीं पहचानते हो. कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अपनों को सलाम करेंगे, दूसरे मुसलमान जिसको मैं नहीं पहचानता उसको सलाम नहीं करेंगे. कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है. इट इज साइन ऑफ कयामत. You can open all the alamat of Qiyamah in the hadith. अपने को सलाम करेंगे, हाँ अस्सलाम वालेकुम हंसेंगे, लेकिन दूसरा कोई अननोन मुसलमान है, जानते ही नहीं, जैसे पास हो गया. क्या फरमाया? या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो. व तुतइमु ताम, feed the people, feed. This is the second message of Nabi Sallallahu after migrating. The first message in Medina Munawwara, फकान अव्वलु मा क़ाल, सबसे पहली बात जो मदीना में आपने बयान फरमाई ये थी, क्या? सलाम करना, खाना खिलाना, वसिलुल रहम. क्या फरमाया? join the relationship, don't break it. हदीस में आता, मुस्लिम शरीफ ऑथेंटिक हदीस, एवरी मंडे एवरी थर्सडे आवर बुक ऑफ डीड्स इज गोस टू अल्लाह तबारक व तआला. अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों से, तुम जाओ सबकी मगफिरत लिख दो सिवाय उन लोगों की जो आपस में रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं, उनकी नहीं लिखना है, उनकी मगफिरत नहीं होती है. ओपन द मुस्लिम शरीफ, यू विल फाइंड दैट. टुडे यू कैन सी, यू नो, टॉकिंग टू द पेरेंट्स, not brother, not sister, not family, not neighbor. थोड़ी थोड़ी बात में झगड़े झगड़े झगड़े, और ऐसे झगड़े यहां तक मेरे कान पर बात आई, मेरे जनाजे में भी नहीं आना. मेरे घर तो जो, मेरे जनाजे पर भी नहीं आना. इतना अल्लाह. And the fourth thing he mentioned, number 1 salam, then number 2 ta'am, feed, number 3 join relationship, and number 4 he mentioned salla bil layl wan nasu niyam, when people are sleeping you get up and read tahajjud. क्या मिलेगा अल्लाह के नबी? आगे फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में तू पीसफुली दाखिल हो जाएगा. पीसफुल. और हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, you cannot enter in Jannah, Bukhari, cannot enter in Jannah without iman. And your iman cannot become strong until you love each other, and you cannot love each other until you make salam each other. मालूम होता है कि सलाम एक ऐसी दुआ है, ऐसी दुआ है, टाइम नहीं वरना मैं उसके डिटेल में जाता. अल्लाह के हबीब ने सलाम पर क्या क्या फरमाया. सहाबी आए, आखिरी बात, सहाबी आए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, 10 ने की. दूसरे साहबी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, 20 ने की. तीसरे आए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, फरमाया वालेकुम अस्सलाम, 30 ने की. आजा फरमाया पहला आया उसने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम का, उसको 10 ने की मिली. दूसरा आया उसने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ही got 20 ने की. द थर्ड वन के he mentioned the full अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, ही got 30 ने की. फ्री. और कोई नेक आदमी को आपने सलाम किया, उसने तुमको कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी तुम्हें, अल्लाह की बरकत. ये दुआ है. अब तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, क्या और क्या, अभी टाइम नहीं वरना मैं उसको समझाता आपको गुड मॉर्निंग क्या है, गुड इवनिंग क्या है. समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए. थोड़ा सुनो लेकिन अमल करो, आपस में सलाम करोगे इंशाअल्लाह. बोलो ना यार इंशाअल्लाह. जुमा का वक्त है, अल्लाह दुआ कबूल करे, हम में आपस में मोहब्बत नसीब फरमाए.
मुसलमानों को एक बना दे। आमीन। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।